السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر اور حقائق اور میں ہوں عمر خطاب۔ ناظرین، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے خبریں وہ سرگرم ہیں اور کل شاہدرہ میں لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور یہ جلسوں کا آغاز کیا گیا ہے اور جس میں دھواں دار خطاب مریم نواز نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک میسج ہے شاہدرہ کے عوام کے لیے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اگلے مہینے اکتوبر میں مینار پاکستان آئیں گے اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ جو پالیسی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیا نواز شریف یہ جو مفاہمتی ان کا بیانیہ ہے اس پر کاربند ہو پائیں گے؟ کیا انہوں نے جو پہلے مزاحمتی سیاست سے سفر کا آغاز کیا، اب انہوں نے مفاہمتی سیاست کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ عوام کو کس طرح سے وہ اپنی طرف رجوع کر پائیں گے؟ جو ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ کہاں گیا؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عابد نصیر صاحب نے۔ سینئر اینکر ہیں، ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر رشید کلیا صاحب، وہ بھی اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے عابد صاحب، آپ سے میں یہ بات کروں گا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور جس طرح سے پھر بعد میں گیلپ سروے بھی آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا فیوچر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جو یہاں طاقتور ہونا چاہتا ہے اس کی طاقت کو بالکل تلوار کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو یہاں جانبر ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میں پور کے حکمرانی کروں، اسے حکم نہیں دی جاتی۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا، لے کے آئے عمران خان کو، تو عمران خان 3.5 سال بعد لگا کہ یہ ہماری خواہشات پر پورا نہیں اترتا، تو عمران خان اتر گیا۔ نواز شریف آئے، نواز شریف کو 2017 میں بڑی بری طرح وہ کردار مار کے یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اچھا، اب نون لیگ کا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاکستان کا مستقبل جو ہے نا، وہ خطرے میں ہے۔ اس طرح جماعتوں کو مار دینا، اس طرح جماعتوں کو دیوار سے لگانا، یہ عمر خطاب بٹو صاحب روایت ٹھیک نہیں ہے۔ نون لیگ کا دیکھیے، یہاں کسی کا بھی مستقبل تابناک ہو سکتا ہے راتوں رات، یہاں کسی کا بھی مستقبل تاریک ہو سکتا ہے راتوں رات۔ ہر تاریکی یا تابناکی ایک ڈیل کی مار ہے۔ That is it۔ صحیح، ڈیل کی مار ہے۔ طاہر صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عمر صاحب، وقت کے لیے بات تھوڑی کروں گا، لیکن ایسی کروں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والوں کی سمجھ میں بھی آئے۔ یقیناً پاکستان کی 75 سالہ تاریخ رہی ہے، اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس ملک میں جو حکمران اسٹیبلشمنٹ کے پیارے رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کے پیارے رہے ہیں، یا جو ایوانوں کو جاتی ہوئی پگڈنڈیاں ہیں جی، اس پر بیٹھے وہ صدائیں لگاتے رہے ہیں، میرے خیال میں وہی لوگ جو ہیں وہ جو اقتدار کی مداریاں ہیں وہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ جہاں تک رہی مسلم لیگ نون کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت، تو ریسنٹلی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا بیان سنا ہوگا، جس میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہم نے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر نون لیگ کا مستقبل دیکھنا ہے یا نون لیگ کی جو اگلی پالیسی دیکھنی ہے، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے۔ طاہر صاحب، آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی ہے، انہوں نے پھر اگر حکومت آتی ہے تو انہوں نے پھر وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر خزانہ کا عہدہ ان کے پاس جائے گا تو عوام کا یا ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ عمر بھائی، آپ دیکھیں پچھلے 18 ماہ کی جو نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی،
उसमें इसहाक डार साहब को स्पेशली जो है वो तमाम तर रिलीफ फराहम करके उनको पाकिस्तान लाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी और आवाम का जो अब तक का हाल है वो आप सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में जो आजमाए हुए तीर हैं उनको दोबारा नहीं आजमाना चाहिए, और ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन हैं और जो इश्तिहारी डिक्लेयर किए गए हैं, अगर उन्हीं के से आप उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं तो मेरे ख्याल में ये सरासर खाम ख्याली होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात इसहाक डार साहब की, तो इसहाक डार अगर नून लीग की गवर्नमेंट बनती है, यकीनन इसहाक डार के अलावा कोई भी शख्स जो है वो वजारत खजाना का कलमदान नहीं संभाल सकता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट में होंगे, उनकी गवर्नमेंट होगी, तो इसहाक डार जो है वो आपके खजाने के कलमदान उनके हाथ में होगा। और उनकी कारकर्दगी क्या है, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो निकाल कर देख लें उनका। मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ जो पहले मज़ाहमती सियासत किया करते थे, उसके बाद मुल्क से बाहर चले गए और एकदम से मुफाहमती सियासत का आगाज़ किया गया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? उमर भाई देखें, जहां तक नून लीग की सियासत, मुफाहमत या मज़ाहमत की बात है, तो नून लीग का हमेशा से ही ये वर्ता रहा है, ये उनकी एक प्लानिंग रही है कि वो जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो उनके हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि जब भी वो इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में होते हैं, तो वो लोगों के गिरेबान पकड़ते हैं। जब भी उनको इक़्तिदार से आउट किया जाता है तो वो लोगों के पाँव में आपको नजर आते हैं। अब मियां नवाज शरीफ, जिनको अपनी स्पेस बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, उन्होंने दोबारा से मज़ाहमत की सियासत को छोड़ के मुफाहमत की सियासत का रास्ता अपनाया है, और मेरे ख्याल में ये उनकी एक अच्छी सियासी मूव है, क्योंकि अगर उनको सियासत में उन्होंने मतलब अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपनी सियासत को बचाना है, तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मज़ाहमत की सियासत नहीं कर सकते। उनकी तबीयत को ये चीज सूट नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले कौन थे? मियां नवाज शरीफ साहब थे। उस पर मियां नवाज शरीफ, उनकी पार्टी और उनकी बेटी की जो सियासत है, जो हिकमत अमली है, वो कितनी देर तक रुकी रही? वो कब तक मतलब इस चीज पे चलते रहे? का नारा कहाँ गया ताहिर भाई? जी बिल्कुल, वो हवा हो गया है, और इसी नजरिए से अब नून लीग दोबारा से, चूंकि वो इक्तदार की राहदारियों में आना चाह रहे। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं, नून लीग के बयानिए में जो आने वाली तब्दीली किसी दबाव का नतीजा है या कोई डील हो चुकी है? क्या मामला क्या है? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए उमर साहब, नून लीग की जो मौजूदा हिकमत अमली नजर चीज का तासुर दिया जा रहा है जैसे नून लीग के हाथ में को बहुत बड़ी डील लग गई है, और मियां नवाज शरीफ का इस तरह से मज़ाहमत की सियासत को छोड़ के मुफाहमत की पॉलिसी पर चलना, ये यकीनन उनको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है, जिसकी बदौलत अब नून लीग जो है वो अगले आने वाले दिनों में आपको मुफाहमत की बात करती हुई, मुल्क की तरक्की और मुल्क की खुशहाली की बात करती हुई नजर आएगी। और एक चीज और भी आपको देखने को मिलेगी नून लीग की मौजूदा जो पॉलिटिकल मूव है उसमें, कि हो सकता है लसानियत की बुनियाद पे नून लीग जो है वो आपको सियासत करती हुई नजर आए। यहाँ पे पंजाब कार्ड भी खेला जाएगा, यहाँ पे पंजाबियों को जो है ना वो दोबारा से जगाने की कोशिश की जाएगी, और जो पंजाबी कार्ड है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। उमर साहब, आप जानते हैं कि पंजाब में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा मेजोरिटी होती है, विफाक में वही गवर्नमेंट बना रही होती है। अगर पंजाब आपके हाथ में है तो इसका मतलब है कि विफाक आपके हाथ में है, और नून लीग की अब यकीनन यही कोशिश है, और उसी की मूव जो है वो आपको नजर आ रही होगी। रिसेंटली आपने देखा कि मरियम नवाज जो है उन्होंने लाहौर से इस मूव का आगाज कर दिया है, वर्कर्स को दोबारा चार्ज करने की वो कोशिश कर रही हैं। कहीं पर वर्कर्स को ऑफर की जा रही है कि आपको 1 to 5 जो है बाइक्स दी जाएंगी, आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप शिरकत करें, अपने लीडर का इस्तकबाल करें। लेकिन यहाँ पे जो बात बड़ी मानी खेज है। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि पिछले 16 माह की कारकर्दगी हमारे सामने है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और अब आइंदा इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? कौन सा बयानिया अवाम को अट्रैक्ट कर सकता है? कौन सा चूरन बेचा जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से? देखें उमर साहब, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और तमाम पॉलिटिकल जमातों को जो है वो बराबरी की सतह पे
ग्राउंड मुहैया किया जाए तो मेरे ख्याल में नून लीग जो है उसको बहुत बड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि पीडीएम की जो 16 माह की उनकी गवर्नमेंट है उसने आवाम के दिलों से नून लीग के लिए जितनी भी मोहब्बत थी उसको खत्म किया है। नो डाउट इसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी रजा शामिल नहीं थी, वो इस कम वक्ती गवर्नमेंट के हक में नहीं थे। वो चाहते थे कि कम से कम अगर ये गवर्नमेंट बना भी रहे हैं जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे तो उनको 3 साल का वक्त दिया जाए ताकि नून लीग और उससे उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कुछ कर भी सकें। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सकता था, पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता, और आप देख भी रहे हैं कि 90 रोज के बाद इलेक्शन होना थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है, इस मुल्क की जमहूरियत की बदकिस्मती है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। इन इलेक्शंस के डिले का जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि अवाम के दिलों से जो हुक्मरान है उनके लिए जो नफरत है उसको कहीं ना कहीं भुलाया जा सके। तो नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आते हैं, सबसे पहले उनको जेल फेस करना पड़ेगी, अदालतों को फेस करना पड़ेगा, उनके जो केसेस हैं उनको देखना पड़ेगा। अगर उसके बाद उनको रिलीफ मिलता है तो नो डाउट मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के अवाम के दिलों में मोहब्बत है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2013 से 2017 तक का जो वक्त था, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी जिसकी वजारत उज़्मा पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, जब उनको नाअहल किया गया पैनमा केस में, तो उसके बाद से अब तक लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये गुमान जरूर है कि नवाज शरीफ जब भी गवर्नमेंट में आते हैं लोगों को, लेकिन चूंकि 16 माह की गवर्नमेंट जो है वो भी नून लीग के खाते में डाली जाती है, और जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितनी भी महंगाई बढ़ी है और आवाम का जो कचूमर निकला है उसका भी जिम्मेदार नून लीग और नून लीग के जितने भी करता धरता हैं उन्हीं के खाते में जाता है। तो अब देखना ये होगा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आकर किस हिकमत अमली के तहत लोगों को चार्ज करते हैं और उनके दिलों में जगह बनाते हैं ताकि वो नून लीग को सपोर्ट कर सकें। अच्छा ताहिर साहब, नून लीग की हमने बात की, पीटीआई के हवाले से एक मुख्तसर सा आप जवाब दीजिएगा कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या पीटीआई आइंदा होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? जहां तक मेरा ख्याल है उमर साहब, अगर पीटीआई को अगले इलेक्शन से आउट किया जाता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको नहीं गिना जा सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी जमात है, उसके फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर तमाम तर कदगने दूर करके पीटीआई को प्रॉपर मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल में पीटीआई बहुत बड़ा डेंट भी डाल सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो पीटीआई के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं। अगर तो सभी पॉलिटिकल जमातों को बराबर स्पेस दी जाती है और उनको इलेक्शन में आने का, इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई पाकिस्तान की एक मर्तबा फिर से मकबूल तरीन पार्टी बनकर और उभर कर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। ताहिर रशीद कलिया, न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ के वापसी के बाद जो जलसे शुरू किए गए हैं, जिसका आगाज़ किया है मरीम नवाज शरीफ ने, तो वो इस तरह से आवाम को एक तरह से वो चार्ज कर रहे हैं ताकि नवाज शरीफ जब आएँ तो आवाम पहले से ही पुरजोश हो और उनका जो है इस्तकबाल जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। और पीटीआई या अगर इलेक्शन की बात करें तो अगर इलेक्शन में तमाम जो पार्टियां हैं उनको चांस दिया जाए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उनको कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए, तब ही शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। अगर किसी पार्टी को बिला वजह बैन किया जाता है, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो इस तरह से उनको शफाफ इलेक्शन नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।